सभी व्यूअर्स को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर का सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यूशन में आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझाया। उसके बाद ये हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से अगर कंज्यूमर हम मान के चलें कि एक ही कमोडिटी का कंजप्शन कर रहा है तो फिर वो कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा, या वो कितनी यूनिट का कंजप्शन करे जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि अगर कंज्यूमर दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी अगर कंज्यूम करता है तो फिर वो कैसे इक्विलिब्रियम में पहुँचेगा। तो बड़े ही सरल शब्दों में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स टू और मोर देन टू कमोडिटीज देन एज पर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को हम एक और कंडीशन के नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि consumer will try to consume such number of units of both the commodity so that the marginal utility which comes out from these two commodities should remain same. In other words, the ratio between the marginal utility and price of the commodity of both the commodities should equal. This is the condition of consumer equilibrium in the case of two commodities. He will be in equilibrium when the ratio of marginal utility and price of one commodity, suppose here the one commodity is X, is equal to the ratio of marginal utility and price of another commodity, that is Y. So what can you write? You can write MUX upon PX is equal to MUY upon PY. Again see here that what we said that suppose two commodities are consumed by a consumer. A consumer consumes only two goods. Let these goods be X and Y. The prices of X and Y is PX and PY. Consumer attains equilibrium only when the following condition satisfied. And what is the condition? The condition is that MUX upon PX should equal to MUY upon PY. Here MUM is we take, and the MUM is the marginal utility of money. So you can note down from here that what are the meaning of the different symbols. Here MUX is the marginal utility of commodity good X, MUY is the marginal utility of good Y, PX is the price of X, PY is the price of Y, and MUM is the marginal utility of money. So this is the situation, this is the condition that how a consumer can get equilibrium situation या equilibrium position if he is using two or more than two commodities. And what is the assumption for this condition? That the assumption of consumer equilibrium for one good is extended to the two good also. That means कि whatever assumptions we took in the first in the case of one unit commodity, the same assumption would remain here. There is no change in the assumptions. So this is about the consumer equilibrium in the case of two commodities. I hope you have noted down this, and I hope you had understand this. Now we may continue, we remain continue, and we explain this condition with the help of an example. एक या दो एग्जाम्पल से हम इसको समझाते हैं। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल ये है कि टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वी एज्यूम दैट अ कंज्यूमर हैज़, यहाँ पर ये बच्चों हैज़ लिखा हुआ है, consumer has ₹5 and consumer has ₹5 and he buys two commodity X and Y. हमें इस एग्जाम्पल को समझने के लिए या जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर कंज्यूमर दो कमोडिटी को बाय करता है और वो दो कमोडिटी है X और Y, एंड द कंज्यूमर हैज़ ओनली ₹5 and the price of both the commodities are same and that is ₹1. यानी कि X की प्राइस भी ₹1 है और Y की प्राइस भी ₹1 है। Now you see as per the given table below, consumer will be in equilibrium when he consumes 2 units of X. Consumer equilibrium में कब होगा? जब वो 2 यूनिट ऑफ X की कंज्यूम करेगा एंड 3 यूनिट्स ऑफ Y की कंज्यूम करता है।
In this situation, the condition of consumer equilibrium is fulfilled. So you can see the table, and after looking this table, you will understand what I am saying. Here, these are the units of both commodities 1, 2, 3, 4, 5. This is the marginal utility of X. This is the marginal utility of Y. As you know here that you can say that in this case, because price of X is equal to price of Y, and that is 1. So our condition कंज्यूमर वुड बी इन इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब MUX जो है वो बराबर हो जाएगा MUY के। कारण ये है कि अगर हम PX और PY की हम बात करते हैं, फार्मूला तो देखिए वही रहेगा, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। बट क्योंकि यहाँ पर PX और PY दोनों को 1 मान लिया, हमने इस एग्जांपल में PX और PY दोनों 1 ली है, तो जब अब PX और PY आपकी क्या हो गई, PX एंड PY बोथ आर इक्वल टू 1। सो इन दिस केस योर कंडीशन वुड बी MUX अपॉन PX। तो नीचे PX आप 1 लिखेंगे तो वो हो जाएगा MUX, और MUY अपॉन PX नीचे 1 लिखेंगे तो वो हो जाएगा MUY। सो द कंडीशन वुड बी MUX इज इक्वल टू MUY। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो हम और आगे एग्जाम्पल में इसको समझाएंगे। अब यहाँ देखिए कि कंज्यूमर दोनों यूनिट्स का उतना कंजप्शन करे जिससे कि MUX और MUY दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। अब अगर हम बराबर का सिचुएशन देखते हैं तो ये दोनों बराबर होती हैं, एक तो देखिए यहाँ पर 12 और ये 12, तो ये दोनों बराबर हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि MUX और MUY बराबर हो रहा है 5 और 5, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, ये जो दोनों टेबल है ये दोनों टेबल शो करती है MUX को और MUY को। और आपकी जो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़, उसमें MUX और MUY क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इस एग्जांपल में ये 2 जगह बराबर हो रहे हैं, एक तो जहाँ पर ये 12 हो रहा है और एक आपका जहाँ पर ये 5 हो रहा है। अब देखिए यहाँ कि अगर कंज्यूमर 12 को लेके चलता है, इसका मतलब कि 2 यूनिट का तो वो करे कंजप्शन किसका, Y का, और 3 यूनिट का कंजप्शन करे किसका, X का। और X की प्राइस कितनी है, X की प्राइस आपको पता है PX इज इक्वल टू 2 है, और Y की प्राइस कितनी है, Y की प्राइस इज इक्वल टू PY आपको पता है 1 है, सॉरी X की भी प्राइस 1 है और Y की प्राइस भी 1 है। अब अगर वो Y की 2 कमोडिटी खरीदता है तो उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 2 रुपये खर्च कर दिए। और अगर वो X की क्वांटिटी खरीदता है 3, तो उसने कितने रुपए खर्च किए, 3, और टोटल उसके पास कितने हैं, 5, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। इसलिए कंडीशन यही फुलफिल हो जाएगी, यानी कि अगर 2 कमोडिटी का कंज्यूमर कंजप्शन करता है और उसे इक्विलिब्रियम में आना है तो ही विल बाय 2 यूनिट्स ऑफ Y एंड 3 यूनिट्स ऑफ X, बिकॉज द प्राइजेज ऑफ बोथ PX एंड PY इज इक्वल टू 1। So the total money, that is 5 rupees, he will spend on these 2 commodities. And the another thing is that because when he buy 2 units of X and 3 when he buy 2 units of Y and 3 units of X, then both the marginal utility of both the commodities are equal, that is 12 and 12. Now you can say कि सर मार्जिनल यूटिलिटी तो ये 5 पर भी बराबर, बिल्कुल सही है, बराबर है। लेकिन अगर वो इसके हिसाब से 4 यूनिट लेगा Y की और 5 यूनिट लेगा X की, तो टोटल उसको रुपए चाहिए 9, यानी कि 9 रुपीज़, जबकि उसके पास कितने रुपए हैं, 5 रुपीज़ ही हैं। इसलिए ये जो हमारा सिचुएशन है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब वो 2 यूनिट्स Y की और 3 यूनिट्स वो X की परचेज करता है। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो हम इसको और आगे एक टेबल और एग्जाम्पल के हेल्प से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स सी, देखिए अगला, ये हमारी अगली सिचुएशन है, एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। आप वापस ध्यान रखिएगा कि जो कंडीशन हमारी है वो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये PX और ये जो PY है दोनों क्योंकि हमने 1 मान लिए थे, तो हमारी जो कंडीशन बन गई थी वो बन गई थी MUX इज इक्वल टू MUY। ये हमारी सिचुएशन वहाँ पर बन गई थी, और उसमें जहाँ भी ये दोनों जिस भी यूनिट को ख़रीदने से बराबर होते हैं वही हमने उतनी ही यूनिट को कंज्यूमर क्या करेगा, परचेज करेगा।
अब इसी एग्जाम्पल को या इसी कंडीशन को जो टू कमोडिटी के केस में कंडीशन है, इस टू कमोडिटी के केस की कंडीशन को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। हमारा हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब बच्चों हमने यहाँ पर ये माना है कि कंज्यूमर की जो इनकम है, द इनकम ऑफ कंज्यूमर, वो है उसके पास 30 रुपीज़ हैं और प्राइस जो है गुड्स की, एक्स की जो प्राइस है वो है ₹4 और वाई की जो प्राइस है वो है 2 रुपीज़, यानी कि पी एक्स हो गया हमारा 4 रुपीज़ एंड पी वाई हो गया हमारा 2 रुपीज़। दैट मीन्स कि द कंज्यूमर विल बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बोथ एक्स एंड वाई इन सच अ वे सो दैट MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY इट रिमेन्स सेम। ये दोनों क्या हो जाए, इनका रेशो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उतनी यूनिट्स को कंज्यूमर खरीदेगा जिससे कि इन दोनों का रेशो क्या हो, बराबर हो जाए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम टेबल में चलते हैं। ये जो MUX और MUY दोस्तों ये काल्पनिक है, इट इज़ एज्यूम्ड, इट इज़ हाइपोथेसिस। ये कैसे क्या आया इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ये हमको दिया हुआ होगा, इट वुड बी गिवन। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर कंज्यूमर एक्स की 1 यूनिट का कंजप्शन करता है तो उसको 80 मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। इफ़ ही बाइज 2 देन ही गेट द 72, इफ ही बाइज 3 देन ही गेट द 64। इन द सेम वे दीज आर द गिवन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ commodity Y. Now when you start to make the ratio of this MUX and MUY, then another column is MUX upon PX and MUY upon PY। ये PX लिख दिया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये PY है, दिस इज़ PY। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये क्या है, PY है, दिस इज़ PY। तो 80 अपॉन एक्स की प्राइस कितनी लिखी हमने, एक्स की प्राइस आपको पता है, एक्स की प्राइस है 2 और वाई की प्राइस कितनी ली है, वाई की प्राइस है हमारे पास 4। तो आप देखिए यहाँ पर 80 अपॉन 2 किया तो ये हो गया, सॉरी क्योंकि एक्स की प्राइस 4 है, ये थोड़ा गलत हो गया, एक्स की प्राइस 4 है और वाई की कितनी है 2 है। तो जब हमने 80 अपॉन 4 किया तो ये हो गया 20 और यहाँ 40 अपॉन 2 किया तो ये हो गया 40 अपॉन 2 हो गया तो हो गया 20। देन 72 अपॉन 4 तो 18 और फिर यहाँ पर जो आ गया 38 अपॉन 2 19, देन 16 अपॉन 4 तो 4, देन सॉरी 64 अपॉन 4 तो 4 एंड 36 अपॉन 4 तो 2 तो 18। एक्स की जो वाई की जो प्राइस है वो ₹2 है और एक्स की जो प्राइस है वो ₹4 है। तो यहाँ MUX में हर जगह हम क्या कर रहे हैं, 4 का डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ MUY में हर जगह हम क्या कर रहे हैं, 2 का डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो हमने यहाँ पर एक कॉलम बना लिया MUX अपॉन PX का और एक कॉलम बना लिया हमने MUY अपॉन PY का। तो जब ये कॉलम बनाया तो हमारे सामने आया 20, 18, 16, 14, 12। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। तो ये कैसे आया कि इसको जो MUX है इसके अंदर हमने 4 से डिवाइड किया हर नंबर को। देखिए 64 डिवाइड बाई 4 तो 16 आ गया, 56 डिवाइड बाई 4 तो 14 आ गया, 48 डिवाइड बाई 4 तो 4 आ गया, सॉरी 12 आ गया। इसी तरीके से यहाँ जो हमारे को MUY दे रखी है इसके अंदर PY का जो कि प्राइस है उसका हम डिवाइड करेंगे। तो 40 अपॉन 2, 38 अपॉन 2, 36 अपॉन 2, 34 अपॉन 2 एंड वी विल गेट दिस MUY अपॉन PY। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर एंड व्हाट कैन यू सी कि इन विच पोजीशन या in which number of units both MUX and MUY are equal. So how can you see that where at what position both are equal? So these are the equal at the position when how many units of consumer buy. तो आप देख सकते हैं कि कितनी यूनिट पर कंज्यूमर जब वो खरीदेगा तो उसकी ये जो रेशियो है वो बराबर आता है। एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये रेशियो कैसे निकला है मैंने आपको बता दिया। MU में प्राइस ऑफ एक्स का डिवाइड कर देंगे, MUY में प्राइस ऑफ वाई का डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास रेशियोज़ आ गए। अब हमारे पास जो ये इक्वल हो रहे हैं वो इक्वलेशन आप देख सकते हो, तो 18 और 18 पर इक्वल है। इसके अलावा इफ़ यू सी कि वेयर बोथ आर इक्वल, तो हेयर यू कैन सी दैट द 16 एंड 16 पर इक्वल हैं। then these are equal at 14 and 14। आई थिंक इसके अलावा कहीं और ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो जब हम ये देखेंगे कि ये 3 सिचुएशन हो गई जहाँ पर कि इक्विलिब्रियम हो सकता है। लेकिन द सेकंड थिंग इज़ कि हमें जो कंज्यूमर के पास इनकम है
उसके पास जो पैसा है वो भी हमको यहाँ पर देखना है कि हाउ मच मनी द कंज्यूमर हैज़। तो कंज्यूमर हैज़ ओनली 30 रुपीज़। तो अब ये जो दोनों यहाँ इक्वेशन में इक्वलाइजेशन दिया हुआ है उसमें हमें ये देखना है कि 30 रुपीज़ पूरे खर्च होते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पर पहली जो सिचुएशन है वो है आपके सामने 18 एंड 18 की, ये 18 और ये 18, यानी कि कंज्यूमर एक्स की कितनी यूनिट कंज्यूम करता है 2 और वाई की कितनी यूनिट कंज्यूम करता है 3। एक्स की करता है 2 और वाई की करता है 3। 2 का मतलब उसके खर्च हुए 8 रुपये, ही स्पेंड 8 रुपीज़। अगर वो 2 करता है तो इस पर कितने रुपये खर्च होंगे, 8 रुपीज़ खर्च होंगे। और अगर वो ये 8 रुपीज़ खर्च होंगे, अगर वो क्योंकि कितनी यूनिट ले रहा है एक्स की 2 यूनिट ले रहा है तो 2 यूनिट पे कितने रुपए खर्च होंगे, क्योंकि एक्स की एक यूनिट कितने की है 4 की, तो 8 रुपीज़ खर्च होंगे। और अगर वो वाई का हम देखें तो वाई पर वो एक यूनिट जो है 2 रुपीज़ की है, 3 यूनिट खरीदता है तो उसके खर्च होंगे 6 रुपीज़, तो टोटल हुआ 14 रुपीज़। जबकि उसके पास कितने हैं, द कंज्यूमर हैज़ हाउ मेनी रुपीज़ 30 रुपीज़। सो दिस वुड बी नॉट द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इसको हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर उसके पूरे पैसे खर्च नहीं हो रहे। ही इज़ नॉट स्पेंडिंग एंटायर अमाउंट। नाउ सी द नेक्स्ट इज़ व्हाट, अगला उसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट इसके पास आता है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर द नेक्स्ट इज़ 16 एंड 16। तो अब देखिए ये 16 और ये 16। यहाँ 16 का मतलब है एक्स की कितने यूनिट का कंजम्पशन करेगा 3 का, और यहाँ 16 का मतलब एक्स कितने यूनिट का कंजम्पशन करेगा 5 का, तो 3 + 5। अब वी नो दैट द प्राइस ऑफ एक्स इज़ 4 रुपीज़। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि 3 × 4 4 यानी कि 12 एंड 5 × 2 यानी कि 10 एंड नाउ ही हैज़ स्पेंड 22 रुपीज़। स्टिल द कंज्यूमर हैज़ 8 रुपीज़। अभी भी उसके पास 8 रुपये बाकी हैं। दैट मीन्स कि ये रेशियो भी इक्विलिब्रियम का नहीं होगा, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि कंज्यूमर जो मनी स्पेंड करता है वो मनी भी इसमें क्या हो जाना चाहिए, एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो अगर वो 16 लेता है तब भी एडजस्ट नहीं हो रहा, और अगर वो 18 लेता है तब भी एडजस्ट नहीं हो रहा। अगला हम देखते हैं द नेक्स्ट इज़ 14। दिस इज़ 14 एंड दिस इज़ 14। नाउ इन दिस द रेशियो इज़ व्हाट, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो रेशियो तो बराबर हो गया क्योंकि दिख ही रहा है, लेकिन क्या उस पर जो मनी स्पेंड हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ अगर वो 14 पर रहता है, MUX अपॉन PX 14 लेता है तो X की कितने यूनिट कंज्यूम करेगा 4, और अगर Y लेता है तो Y की कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा 7। तो इस कॉम्बिनेशन में या इस रेशियो में 4 + 7, 4X लेता है, इसका मतलब 16 रुपये हो गए, 4 4 4 16, और 7Y लेता है, इसका मतलब 14 रुपीज़ किस पे खर्च करेगा, Y पर, और दोनों का मिला के जो टोटल होता है दैट इज़ 30 रुपीज़। यानी कि अगर कंज्यूमर X की 4 यूनिट और Y की 7 यूनिट कंज्यूम करेगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। नंबर 1 कि द रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द बोथ द कमोडिटीज आर इक्वल, एंड नंबर 2 द मनी इज कंप्लीटली स्पेंट बाय द कंज्यूमर। This is the another example to understand the equimarginal utility या consumer equilibrium in case of two commodities. I hope you will understand, you can understand all these topics. Now the next is, यहाँ पर देखिए ये इसको मैंने पूरा एग्जाम्पल को समझाया है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही परचेज 4 यूनिट ऑफ गुड X एंड 7 यूनिट्स ऑफ गुड Y। दिस कैन बी स्टेटेड इन द फॉलोइंग वेज कि MUX अपॉन PX हो गया यानी कि 56 अपॉन 4 हो गया दैट इज़ 14। इन द सेम वे MUY अपॉन PY यानी कि 28 अपॉन PY, और ये हो गया आपका 14 यूनिट्स। देन द कंडीशन इज़ व्हाट कि MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY, ये सेटिस्फाइड हो रही है। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, इट मीन्स 56 अपॉन 4 ये बराबर किसके हो गया 14 के। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इस समय पर उसका जो पूरा एंटायर मनी है वो क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसमें कोई रुपए उसके पास नहीं बच रहे। तो इस तरीके से हम टू कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं।
अब एक क्वेश्चन कई बार आता है कि कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई एंड ही इज इन इक्विलिब्रियम इफ प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर थ्रू द यूटिलिटी एनालिसिस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है, क्योंकि जब पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में चलती थी तो इस टॉपिक पर कई बार क्वेश्चन आया है और इसी फॉर्मेट में आया जिस फॉर्मेट में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोबारा समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई एंड ही इज़ इन इक्विलिब्रियम। पहले से वो इक्विलिब्रियम में है, अब हुआ ये कि एक्स की प्राइस क्या हो गई, फॉल हो गई। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर थ्रू द यूटिलिटी एनालिसिस। तो जब उसकी प्राइस फॉल हो गई तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा, ये आपको यहाँ पर समझाना है। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। देखिए मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि कंज्यूमर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स कि जो उसकी MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, ये जो कंडीशन है ये क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। द कंडीशन इज फुलफिलिंग, क्योंकि बिकॉज एज पर द क्वेश्चन कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रही है, प्राइस ऑफ एक्स फॉल हो रही है। जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल हो जाएगी, ये जो प्राइस है ये अगर कम हो जाएगी, अगर ये प्राइस कम हो जाएगी तो ये जो रेशियो है, दिस रेशियो विल बी इंक्रीज। दैट मीन्स व्हाट विल यू गेट नाउ, यू विल गेट नाउ MUX upon PX would greater than MUY upon PY. This would be the situation. I think you understand my point. कि as per the question, consumer is already in equilibrium, so MUX upon PX is equal to MUY upon PY. Now the price of X falls, ये कीमत X की गिर गई, कम हो गई, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो कम हो गया, ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा है। तो इसका मतलब सपोज करिए कि पहले ये 10/2 था और प्राइस अब कम होकर के, यानी कि रेशो कितना आया 5, और अब ये प्राइस कम होकर के सपोज करिए 1 हो गया, तो ये हो गया 10/1। तो अब ये रेशो कितना हो गया 10, जबकि इधर जो वैल्यूज़ है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो न्यू जो सिचुएशन निकल के आएगी, जो नई सिचुएशन बनेगी, तो द न्यू सिचुएशन वुड बी MUX अपॉन PX वुड ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। आई थिंक आपने यहाँ तक इसको लिख लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए और हम इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। अब आपके जो सामने सिचुएशन हो गई कि MUX जो है आपका, MUX जो है वो किसके बराबर हो, किससे बड़ा हो गया, MUX upon PX greater than MUY upon PY. Now the question is asked that what would be the reaction of consumer. अब इस बड़े हुए रेशियो को इसके बराबर लाने के लिए what can you do, आप क्या कर सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि प्राइस तो ऑलरेडी कम हो ही गया, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हम ये जो बढ़ गया है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कम करना है। और इसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो MUX है इसको कम करना पड़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए क्या करें, एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से अगर MUX को कम करना है तो हमें X की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। वी विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ X। तो MUX जो है वो कैसे कम होगा, वो ऐसे कम होगा कि जैसे जैसे आप ये क्वांटिटी ऑफ X बढ़ाते जाएंगे तो MUX क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने से ये जो रेशो है वो वापस कम होकर के MUY अपॉन PY के बराबर हो जाएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इस रेशो को क्या कर दें, हम बढ़ा दें, और इस रेशो को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MUY अपॉन Y को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। PY तो हम चेंज कर नहीं सकते, ये तो प्राइस है, तो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y को बढ़ाने के लिए आपको Y की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। यू हैव टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ Y एंड बाय दिस वे वी कैन रीच द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। दिस वुड बी द रिएक्शन ऑफ, we can say consumer if the price of X commodity falls। अब आप चाहे तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए,
मैं यहाँ पर ये सारा जो है लिख के दिखा देता हूँ। कंप्लीट, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। यू कैन नोट डाउन। In case of two goods X and Y, a consumer will be in equilibrium when MUX is equal to MUX upon PX is equal to MUY upon PY. When price of X falls, then MUX upon PX would be greater than MUY upon PY. To reach again the equilibrium situation, MUX should decrease. अगर वापस हमें equilibrium situation पहुंचना है तो MUX को क्या करना होगा? डिक्रीज होना होगा, डिक्रीज करना होगा, या फिर MUY को इंक्रीज करना होगा। एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ एक्स और लेस यूनिट ऑफ वाई। और इसको करने के लिए या तो कंज्यूमर एक्स की ज़्यादा यूनिट परचेज करेगा या वाई की कम यूनिट को परचेज करेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हुई हमारी कार्डिनल अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जिसमें कि यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है। इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, and we study this cardinal approach in two situation. One situation in the case of one commodity, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में समझा दिया, और the second situation is consumer equilibrium when the consumer consumes two or more than two commodities, जिसे अभी हमने एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में मैं आपको ऑर्डिनल अप्रोच पर ले चलूँगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।